Good morning, my dear students. Let's start another video. In last video, I have taught you structure of simple present tense in all sentences. I have taught you a structure of simple present tense in assertive sentence, negative sentence, yes/no question, and WH word question. In this video, we will learn the use of simple present tense in the sentence with the help of a structure given. Note number 1. Simple present tense is used to show universal or permanent activity. Simple present tense is used to show universal or permanent activity. It means the action that always happened, an action that always happens, we have to use simple present tense for this. वह एक्शन जो हमेशा होता है या हमेशा नहीं होता है, यह फैक्ट है जो हमेशा होगा या नहीं होगा, इट इज अ फैक्ट। इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। Here the sun sets in the west. It is also a universal truth that when the sun rises in the east, it will set in the west. अगर सूरज पूरब में उगता है तो वह पश्चिम में डूबता भी है। Now we have to pay attention. अब हमको ध्यान रखना है सब्जेक्ट और वर्ब पे, क्योंकि हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 भी यूज करना है और V5 भी यूज करना है। The sun, here subject is singular, so we use verb V5 because verb V5 is singular. Again listen, the sun is singular, so we use verb V5 because the verb V5 is singular. In second question, the sun sets in the west. Here also the subject is sun and it is singular, so it takes singular verb sets. Man is mortal. It is also universal truth that man is mortal. Here man is singular, so we will use is. Here man is singular, so we will use is. Oil floats on water. Oil floats on water. Here oil is singular, so we will use verb V5. If the subject is plural, we will use verb V1. Oil floats on water. It is a universal truth. Some more example is that 2 and 2 makes 4. 2 and 2 makes 4. Very good. 2 and 2 makes 4. It is also a universal truth that 2 और 2 4 होते हैं. So we will use simple present tense and the number always remains singular, so we will use singular verb. Now see next note. Simple present tense is used to show regular, habitual, usual or repeated action. Simple present tense is used to show our regular, our habitual, our usual or our repeated action that we do daily or that we do many times in a day because it is a repeated action. ऐसा काम जो हम लोग रेगुलर करते हैं या लगातार करते हैं या दिन में 2-4 बार करते हैं लेकिन डेली करते हैं, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। सच फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। इट इज अ यूनिवर्सल टू दैट वी गेट अप इन द मॉर्निंग। हम लोग सुबह में जगते हैं, यह हैबिचुअल वर्क है और रेगुलर वर्क है कि जब हम रात को सोते हैं तो सुबह में जगते हैं। हियर सब्जेक्ट इज आई एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट I is mostly treated plural. Only in past continuous tense it is treated singular. But in all
except simple pa- except past continuous tense, I is treated as a plural. केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही हम आई को सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं और सभी टेंस में हम आई को प्लुरल के रूप में यूज करते हैं. हेयर आई इज प्लुरल, सो वी विल यूज गेट, नॉट गेट्स, because get is a singular verb. Get is a plural verb. Here get is a plural verb. Okay, I get up in the morning. Next, she never tells a lie. Here the subject is she and the timing word is never. वह कभी झूठ नहीं बोलती है. यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वह कभी झूठ नहीं बोलती है. तो it is a universal truth or regular activity, so we will use simple present tense. The subject is she and she is singular, so we will use tells. She is singular, so we will use tells. Okay? I live in Patna. I have already told you I is plural. I is living in Patna is a regular verb, so we will use simple present tense. And I is plural, so we will use verb B1 to make the sentence plural. He always helps me. Here he is the subject and it is a singular subject. He, here he is subject and it is a singular subject. And always, always it is a timing verb कि वह हमेशा मेरी मदद करता है, यानी जब जब मुझे जरूरत पड़ती है तब तब वह मेरी मदद करता है. हमेशा का सेंस है, यानी कि यह रेगुलर वर्क है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे. Here the subject is singular, so we will use the singular verb. It means verb V5. Now see some more example. Note number 3. Conditional word. After conditional word, we have to use simple present tense. After conditional words, we have to use simple present tense. And after simple present tense, we have to use simple future tense. Listen again. Conditional word plus simple present tense. It means after conditional words, we have to use simple present tense. And after simple present tense, we have to use simple future tense. अगर सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड हो तो कंडीशनल वर्ड के बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद किसका यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले देखिए कि कंडीशनल वर्ड कौन कौन होते हैं और क्या होते हैं. तो कंडीशनल वर्ड ऐसे वर्ड को कहते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और दोनों का एक दूसरे से परस्पर संबंध बताते हैं. Conditional words are the word that joins two sentences and make a relationship between them. Conditional words are words that join two sentences and make a relationship between them. Now see some conditional words. If, unless, until, in case, after, before, and when. And when they are conditional words, आफ्टर देम वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. यह कंडीशनल वर्ड है, इसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. ठीक है, समझे? यह सिंपल, यह कंडीशनल वर्ड है, इसके बाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. नाउ सी सम एग्जांपल. इफ ही कम्स. हियर इफ इज अ कंडीशनल वर्ड एंड आफ्टर दैट इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसके बाद क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी आपका क्या है? सिंगुलर है. एंड उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस. सब्जेक्ट के बाद शैल, विल प्लस V1, या विल का भी प्रयोग करें प्लस V1 होना चाहिए. विल प्लस V1 सिंपल फ्यूचर. तो ये आप देख सकते हैं कि ये विल प्लस V1 जो है ये सिंपल फ्यूचर है और ये सिंपल प्रेजेंट है. सी नेक्स्ट एग्जांपल. अनलेस यू वर्क हार्ड. हियर अनलेस इज conditional word. So after conditional word we have to use what? Simple present tense. What we will use? Simple present tense. So unless you work hard, you is a plural subject, so we will use verb V1. You is a plural subject, so we will use verb V1, and work is a verb V1. So unless plus simple present comma you will not pass. Here will plus not plus verb V1, it is a simple future tense. See more example. You will take an umbrella in case it rains. Here in case it is a conditional word, and after in case we have to use simple present tense. In case, here it is a word in case,
and after in case we will use simple present tense. It is a singular subject, so we will use verb V5. It means verb adding with s और es. इन केस के बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किए हैं, तो सिंपल फ्यूचर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो उसको हम बिगिनिंग में प्रयोग कर सकते हैं. तो इसमें क्या चेंजेज है ऊपर वाले में और नीचे वाले में, तो ये एक कॉमा का चेंजेज है. जब हम इस कंडीशनल वर्ड को बीच में यूज करेंगे तो हमको ये कॉमा यूज नहीं करना पड़ेगा, और अगर इसको हम पहले यूज करते हैं तो हमें दो सेंटेंस को एक कॉमा के द्वारा, एक से जुड़ा के द्वारा सेपरेट करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? You will take an umbrella. You is a plural subject and will take, it is a simple future tense. I will give her money. I plus will plus V1, it is a simple future tense, and when is a conditional word, and after that she is a singular subject and wants is a singular verb. So आप देख सकते हैं सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, फिर कंडीशनल वर्ड और फिर सिंपल प्रेजेंट. ओके. नाउ नोट नंबर 4, देयर आर सम टाइमिंग वर्ड दैट शो सिंपल प्रेजेंट टेंस. कुछ टाइमिंग वर्ड है जब सेंटेंस में आते हैं तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं. ध्यान रखेंगे, देयर आर सम टाइमिंग वर्ड दैट शो सिंपल प्रेजेंट टेंस. कुछ टाइमिंग वर्ड है जब सेंटेंस में वो आते हैं तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं. सी एग्जांपल. एट फर्स्ट सी टाइमिंग वर्ड. ऑलवेज, नेवर, habitually, usually, regularly, universally, daily, odd, Sundays, Mondays. Sundays or Mondays means every Sunday, every Monday. Always means हमेशा, never मतलब कभी नहीं, habitually means भी हमेशा, usually means भी हमेशा, regularly means भी हमेशा, universally means हमेशा, daily means हमेशा या प्रत्येक दिन. संडेज का मतलब एवरी संडे, मंडेज का मतलब एवरी मंडे, या आप एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ. एवरी प्लस डे या डे का नेम भी लिख सकते हैं, एवरी ईयर या ईयर का नेम भी लिख सकते हैं, एवरी मंथ या मंथ का नेम लिख सकते हैं, या एवरी वीक लिख सकते हैं. इन सब के बाद या इन जब ये सेंटेंस में आए तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है. ठीक है. जैसे कि ही डैश टू ए स्कूल एवरी डे. यहाँ पे वर्ड है एवरी डे, और एवरी डे जो है वह हैबिचुअल रेगुलर एक्शन को डिनोट करता है. एवरी डे किसको डिनोट करता है? रेगुलर एक्शन को. इसलिए हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे. अब देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर. जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए. ही ऑलवेज डैश बाय बस. यहाँ पे ही ऑलवेज, यहाँ पे वर्ड क्या है? ऐड है ऑलवेज. जब अगर सेंटेंस में ऑलवेज आता है तो यह आपको रेगुलर वर्ड को डिनोट करता है, रेगुलर टाइम को. जैसे ही रेगुलर हो गया तो वो सिंपल प्रेजेंट को डिनोट करेगा, और जब सिंपल प्रेजेंट है तो आप वर्ब V1 या V5 का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. हियर ही इज अ सब्जेक्ट एंड ही इज अ सिंगुलर, सो वी विल यूज कम्स, नॉट कम. ओके. आई होप you have understood. Now see some more example. Now this, it is an exercise. Here they dash to the movies on Sundays. Here there is a word on Sundays. On Sunday means every Sunday, and every Sunday denote simple present tense. Every Sunday denote simple present tense. Now simple present tense, so we have to use either V1 or V5. Now we will see the subject. Here they, the subject is they and there is a plural. सब्जेक्ट क्या है? पुल्लल है. तो पुल्लल है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब V1 का, यानी गो का. सब्जेक्ट अगर पुल्लल है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब V1 का, यानी कि गो का. नाउ सी सम मोर एग्जांपल. ही यूजुअली डैश इन हिज बाथ. ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ एक टाइमिंग वर्ड आया है यूजुअली. इसके साथ कौन सा टाइमिंग वर्ड है? यूजुअली. यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है. तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है तो वर्ब V1 आएगा या वर्ब V5. तो अब हम सब्जेक्ट को चेक करेंगे. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब V5 आएगा, यानी सिंग्स आएगा. क्या आएगा? सिंग्स. आप यहाँ पे सिंग्स फिल करेंगे. अगेन दे पुल्लल सब्जेक्ट है. दे क्या है? पुल्लल सब्जेक्ट. दे डैश अप इन द मॉर्निंग डेली. डेली मीन्स रेगुलरली, एवरी डे.
तो इट इज ऑल्सो अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब भी वन या बी फाइव का यूज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट दे है और दे क्या होता है, प्लुरल, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे। ओके, नाउ सी सम मोर एग्जांपल। वी नेवर डैश अलाई। नेवर मतलब वो कभी नहीं, कभी नहीं, मतलब यह भी एक यूनिवर्सल वर्ड है कि वह कभी ये काम नहीं करता है। तो जब ये यूनिवर्सल एक्शन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करेंगे। बट रिमेंबर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में verb B1 and B5 we have to use. But according to subject, we will use verb B1 or B5. Here, subject we, and we is a plural subject. We is a plural subject, so we will use tail. So we will use tail. Now see question number 5. I dash you if you dash to me. यहाँ पे आपको एक कंजंक्शन का कंडीशनल वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कंडीशनल। तो कंडीशनल वर्ड के जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड कंडीशनल वर्ड के जस्ट पहले आपको सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनल के बाद का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट होना ही चाहिए, और जब पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट तो दूसरा सिंपल फ्यूचर होगा। ठीक है, तो इफ यू प्लुरल है इसलिए कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम, सिंपल प्रेजेंट में। एंड आई क्या, आई शैल हेल्प यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको हम सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे, तो सिंपल फ्यूचर में शैल विल प्लस V1 का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा शैल हेल्प। हार्ड वर्क डैश सक्सेस, इट इज अ प्रोवर्ब, एंड प्रोवर्ब आल्सो रिटन इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो प्रोवर्ब होते हैं, मुहावरा होते हैं, कहावत होते हैं, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। हार्ड वर्क, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, so singular subject takes singular verb brings. Hard work brings success. So that's all in this video. In next video we will learn present continuous tense and their timing word with exercise. Thank you.